गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है शिवाजी छत्रपति का, जहाँ पे हम बता रहे हैं शिवाजी महाराज का पूरा कहानी। और आज हम स्टोरी का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं और इसी के साथ ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग को एक नई सीरीज़ चालू करनी चाहिए किसी और टॉपिक पे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड यस, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलना, क्योंकि वो दबाने से क्या होगा कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो रहेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसी से हम लोग आज लास्ट चैप्टर चालू करते हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज। ऑलराइट, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। इसके पहले के चैप्टर में हमने जाना था मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी। इस चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड लॉन्ग अगेंस्ट मेनी अनजस्ट पावर्स। दे वेर द आदिल शाही एंड मुगल पावर्स, द पोर्चुगीज एंड द सिद्दीस ऑफ जंजीरा. That is how an independent Hindvi Swaraj was created. For smooth working, Shivaji Maharaj divided the administration into 8 departments. He appointed a minister in charge of each. This was his famous council of 8 ministers. The Swaraj of Shivaji Maharaj was a state run for the welfare of the people in the true sense of the term. It was run with the assistance of the 8 ministers. Shivaji Maharaj himself made the appointments of these 8 ministers and other important officers on the basis of their eligibility and merit. He supervised all their work. People lived happily in the Swaraj created by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Therefore, the qualities of confidence, self-respect and patriotism strongly emerged among the people of Maharashtra. So below is the council of 8 ministers. There's a name of the ministers, their designation and department which they used to operate. आप ये चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। शिवाजी महाराज ने कई अन्यायी शक्तियों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। वे आदिल शाही और मुगल शक्तियाँ, पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्धि थे। इस तरह एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज का निर्माण हुआ। सुचारू रूप से काम करने के लिए शिवाजी महाराज ने प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया। उन्होंने प्रत्येक प्रभारी एक मंत्री को नियुक्त किया। यह उनकी 8 मंत्रियों की प्रसिद्ध परिषद थी। शिवाजी महाराज का स्वराज सही मायने में लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाने वाला राज्य था। इसे 8 मंत्रियों की सहायता से चलाया जाता था। शिवाजी महाराज ने स्वयं इन 8 मंत्रियों की नियुक्तियां की। उन्होंने 8 मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। वह उनके सभी कार्यों की देखभाल करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज में लोग सुखपूर्वक रहते थे, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और देशभक्ति के गुण प्रबल रूप से उभरे। मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. Natural environment includes the land in nature as also factors like air, rain, rivers and streams, seas, forests, the birds and animals, light received from the sun, etc. It is beneficial for a man to make use of this environment only to meet his necessities. Shivaji Maharaj took precautions to avoid the destruction of these environmental factors. Shivaji Maharaj saw to it that forest in his kingdom would not be destroyed by the people. From the royal edict, we can see that he had issued many orders like the following. For the navy, it is necessary to build boats and ships of various sizes and their beams, masts, oars, etc., for which wood is required. To obtain this wood, only teak trees should be cut. If more teak wood is required, it should be purchased from foreign territories. But on no account should mango, jackfruit, or other trees be cut. They didn't grow in a year or two. People look after them like their own children in order to grow them. Cutting them is to inflict sorrow onto the people. It should not be done even when a tree is greatly worn out. It should be cut only after paying the owner and getting his consent. पर्यावरण की सुरक्षा. प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति में भूमि के साथ साथ वायु, वर्षा, नदियाँ, समुद्र, जंगल, पक्षी और जानवर, सूर्य,
से प्राप्त प्रकाश आदि जैसे कारक भी शामिल है। मनुष्य के लिए इस पर्यावरण का उपयोग केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करना लाभदायक है। महाराज शिवाजी ने इन पर्यावरणीय कारकों के विनाश से बचने के लिए सावधानियां बरती। शिवाजी महाराज ने इस बात का ध्यान रखा कि उनके राज्य में लोग वनों को नष्ट न करें। राजकीय आदेश से हम देख सकते हैं कि उन्होंने निम्नलिखित जैसे कई आदेश जारी किए थे। नौसेना के लिए विभिन्न आकारों की नावों और जहाज तथा उनके बीम, मस्तूल, पतवार आदि बनाना आवश्यक है, जिसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। इस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए केवल सागौन के पेड़ों को काटा जाना चाहिए। यदि अधिक सागौन की लकड़ियाँ की आवश्यकता हो तो उसे विदेशी क्षेत्रों में से खरीद के लानी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में आम, कटहल या अन्य पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। वे 1 या 2 साल में नहीं बढ़ते हैं। उन्हें बड़ा करने के लिए लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। उन्हें काटना लोगों को दुख पहुंचाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जब कोई पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसे मालिक को पैसे देने और उसकी सहमति लेने के बाद ही काटना चाहिए। कोई बोलते ही। Moving ahead, we will talk about water management. Shivaji Maharaj had various bunds built near the villages in Swaraj to make drinking water available to the people. Canals were dug out to make water available for agriculture. Due to this, there was an increase in the produce. People in Swaraj never felt the severity of droughts. During the regime of Shivaji Maharaj, the number of people living on forts was quite large. Shivaji Maharaj took care to make proper arrangement for water on the forts. Before building a fort, the place was inspected to see whether enough water was available there. In case it didn't have water, tanks and reservoirs were built there before the onset of the rainy season, and the rainy water was stored in them. The stored water was used economically. Due to such water management, people on the forts and other subjects in the Swaraj did not suffer from storage of water even during drought periods. आगे बढ़ते कहानी में जानते हैं, बात करते हैं जल प्रबंधन के बारे में, जो कि शिवाजी ने करवाया था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में गांवों के पास कई बांध बनवाए ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरें खोदी गई। इससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई। स्वराज में लोगों को कभी सूखे की मार नहीं झेलनी पड़ी। शिवाजी के शासनकाल में किलों पर रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी। शिवाजी महाराज ने किलों पर पानी की उचित व्यवस्था करने का ध्यान रखा। किला बनाने से पहले उस जगह का निरीक्षण किया जाता था कि वहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध है या नहीं। अगर वहाँ पानी नहीं होता था तो बारिश के मौसम से पहले वहाँ टैंक और जलाशय बनाए जाते थे और उनमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। संग्रहित जल का मितव्ययतापूर्वक उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के जल प्रबंधन के कारण स्वराज में दुर्गों तथा अन्य प्रजाजनों को सूखे के समय भी जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था।